Good evening and welcome to the 238th Meet the Artist program. This is a permanent in house program of JD Center of Art where we invite artists such as painters, sculptors, potters, architects, photographers, craftspersons, and also scholars. The idea is to enrich and sensitize and create an appreciation for all forms of visual arts. It aims to preserve and promote folk, tribal, traditional, and contemporary art all under one roof. So it's quite a unique vision and an idea. Over to Mr. Jatin Das, who will talk a little bit about JDCA and also about the Meet the Artist program. Yeah. Yes, Baba. Thank you. So, first of all, I'm an artist, originally from Orissa. So, I became a chairman of JDCA much later. So, from my early days, I started collecting a lot of little toys. My grandmother used to give it to me. And that made me interested in traditional art form because in our country, we have many festivals, especially in my early days, there were a lot of festivals, Ratha Yatra, Puja, Ityadi. So, and we all used to go and the craftsmen used to come and spread their craft on the floor. Hundreds and thousands of them. Now they have reduced about 90%. So having collected these little things, my house was getting full. So let me just give you just a quick background of mine. I'm from Mayurbhanj in Odisha, went to Bombay to study art at the JJ School of Art, and then live in Delhi. So I've been away for more than 60 years outside Odisha, but have been completely, continuously in touch with Odisha. Now, fortunately, I travel all of many parts of the country, but never enough. There are still thousands of places still to see. And then I've collected arts and antiquity from Indian subcontinent, Southeast Asia, Far East, Egypt, Africa, etc., etc. Then I went overboard in collecting. And then the government of Orissa, many times, different people in last 50 years told me, Jatin Babu, why don't you come then do a gallery or a studio here and live here and we can pick your brain. So they didn't pick my brain, but I've lost all my hair. You know. So anyway, so that's how the whole idea of, I thought that arts and crafts that's collected and stored at home could be housed into an art center. I dislike the word museum. Museum in Bengali, they say Jadughar. In Hindi, they say Sangrahalaya. Having said that, we've come a long way. It's been 22 years and more. It was established in 1997 in Bhubaneswar, opposite Khandagiri Caves, the 2nd century BC caves. It's a very sanctified land. And the famous architect B.V. Doshi has designed, you know, the world famous architect who is more than 92. And Mahindra Raj, one of the greatest living structure designer of buildings. Now the 3-floor building is up. And the various detail and interior is being done. My eldest son, Siddhartha, who studied at NID, and he is looking after now and to everything of JDCA. And Nandita is also coming in. And my trustees, Devi Prasanna Pattak, the great linguist, is here. And he also one of my founding trustees. At this moment, I'm trying to step down and Mr. Lalit Mohan Singh will become the future chairman and I'll remain as a founder settler. So this is a brief. And we have had, JD Center of Art, we have had 13 National Documentary Film Festival on Art under the Film Forum. And we have had the Meet the Artist program, we call MTA, uninterrupted, as Nandita said, for 18 years and more. And only because of the lockdown, it's been stopped. And this is the beginning of this program. And kindly pass a word. The whole idea is not the promotion of JDCA, but a discourse and a discussion and sharing of ideas. Unfortunately, you see, I live in Delhi. There are innumerable national institutions are here. They don't share expertise, knowledge, information. It's a pity. So I'm reaching out
I'm begging, I'm extending my hand to reach out to people for this. I want to formally now introduce our first online speaker, Mr. Advaita Charan Gadnayak. I'm just going to read out a little bit about him. Sri Gadnayak has been a sculptor for more than 20 years and has done many prestigious art projects in India and in other parts of the world. His work includes Monumental National Police Memorial in New Delhi. The central sculpture is 30 feet tall in a monolithic granite stone. His other significant work is Dandi March, a monumental sculpture of Mahatma Gandhi at Rajghat, New Delhi. Mr. Gadnayak has been bestowed with many national and international awards and fellowships, Commonwealth Fellowship from British Council, National Scholarship from Ministry of Culture, Government of India, as well as Senior Fellowship from Ministry of Culture, Government of India. Presently, Mr. Gadnayak is the Director General of the National Gallery of Modern Art under the Ministry of Culture. So very warm welcome, Mr. Gadnayak, to the first online MTA. You are very familiar with JDCA and you have been to Bhubaneswar to our film festival. For those who don't know, we used to hold an annual film festival for 12 years. And the idea of starting the film festival by the founder was that it's no point having a center. First, we have to create a sensitivity towards the arts so that when the center is up and running, people would come to it. So therefore, a film festival that only focuses on art and artists, and specifically visual arts, was formed. After 12 years, we started realizing the quality of films weren't really up to the mark. It was also difficult as a completely non-commercial, non-governmental organization to run it. So now we have made it once in 2 years. We were fortunate to do our last one before the pandemic hit us, which was this year in February. And Mr. Gadnayak was there. He spoke to our audiences, which is a mix of art lovers, artists, filmmakers, students, and others who have probably never been to a festival or don't know about art. And that's the most wonderful thing, that very slowly we have managed to get more and more people interested in it. Now it's over to you. Thank you, Nandita. So actually, मैं जब सेंटर पे गया था, मतलब जेडी आर्ट सेंटर, तो एक्चुअली जतिन दास से मिलने से जो सारी चीजें मिला है ना, मैं सोचा कि यहाँ मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ, क्योंकि उनका सोच है ना हमेशा रोड को कनेक्ट करने की। एक्चुअली मैं भी यहाँ पर जब आया, एक्चुअली वहाँ काफी बार हम बातचीत भी कर चुके हैं कि किस तरीका हम एक्चुअली जो सेंटर है, सेंटर का मेन उद्देश्य होता है कैसे कनेक्ट करना। तो यहाँ पर मैंने जब ज्वाइन किया एमजीएम में, तो कभी यहाँ इंडिया गेट का सामने जाके मैं बैठ जाता हूँ, मैं नहीं बताता कि मैं एमजीएम से आया हूँ। वो लोग से बात करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कैसे होना हमारा पास हो गया, मतलब स्कूल में कैसे पास कर लिया, उसका बाद उनको जरूरत नहीं है। और कभी कभी मैंने वहां देखा कोई बताए सर मैं टेट गैलरी गया था, वहां पर मैं शो देख के आया। जब टेट गैलरी बोलता है उसका कलर ऊंचा हो जाता है, वो जैसे उसका बायोडाटा बढ़ जाता है, उसको लगता है कि, तो इसमें हमको लगा कि कहाँ तो हम किस तरीके हम कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं आने के लिए भी उनको प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाए, और जो लोग भी आते हैं यहाँ मैंने देखा कभी बड़े बड़े लोग भी आते हैं, उनका साथ में जाता हूँ तो देखेंगे अच्छा इसका प्राइस क्या है, ठीक है मतलब कभी राजा रविवर्मा पेंटिंग बोलते हैं तो मैं 30 करोड़ बोलता हूँ, तो बोलते हैं उससे आगे क्या प्राइस है, मतलब वो प्राइस के बारे में देखते हैं, आर्ट को नहीं देखते हैं। बहुत मुश्किल लगा कि सेंटर का रोल क्या होना चाहिए कि इस तरीके, क्योंकि कभी कभी मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट ही तैयार करता है, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है मार्केट ही तैयार करता है कौन आर्टिस्ट होगा। तो हमारा जो सोच था कि सचमुच एक आर्ट सबके लिए होना चाहिए, इसलिए हम म्यूजियम बना कि सेंटर बना, वो यहाँ पर कुछ नजर मेरे को नहीं आया बिल्कुल। तो मैंने कोशिश किया कि नहीं चलो आर्ट आर्ट बनाते, पब्लिक को बुलाया, मैंने बातचीत किया, बस ऐसे उसमें सारा लोग आए, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट है, कोई साइंटिस्ट भी आ रहे हैं, कोई मेडिकल डॉक्टर भी आ रहे हैं, कोई लॉयर भी आ रहे हैं, कोई राइटर, सब लोग आए। और उसमें मेरे को लगा कि इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं भी जब स्टूडेंट था मेरे को पता नहीं था, मेरा क्लास ब्रिटिश म्यूजियम का अंदर ही हो रहा था, मेरे को 6 महीने तक पता नहीं चला सचमुच मेरा क्लास हो रहा है कि और कुछ हो रहा है।
कभी टेट गैलरी में, कभी ब्रिटिश म्यूजियम में, कभी मतलब 6 महीना तक मेरे को पता भी नहीं चला। इतना फ्लेक्सिबल है कि जो क्लासेस भी हो रहा था कि नहीं म्यूजियम का अंदर है, वो जो एटमॉस्फेयर ऐसा होता था कि यहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट लेके आइए और उसका ऊपर चर्चा करिए, उसका ऊपर कुछ भी बात, आप वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मतलब वहां से निकाल सकते। तो एक बहुत बड़ा रोल होता था कि म्यूजियम का कि एक स्टूडेंट के लिए मतलब सोच भी नहीं सकता कि उसका क्लासेस उसका प्रोफेसर का साथ और म्यूजियम का अंदर हो रहे हैं। तो ये सारी मैंने यहाँ पर देखा कि मैं फिर उसका बाद कोशिश किया कि नहीं चलो स्टूडेंट को बुलाते हैं। फिर स्टूडेंट आया तो मैंने देखा कि आगे एक टीचर है, पीछे एक टीचर है, ऐसे लाइन करके वो लोग चले आए मेरे म्यूजियम का, तो खत्म। मतलब कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग आते हैं म्यूजियम को ऐसे घूमने के लिए आते हैं, कोई मतलब। मैंने उनको बताया भाई 40 स्टूडेंट आइए, लेकिन यहाँ पर बैठिए, स्केच करिए, किसी आर्टिस्ट से मतलब कोई भी आर्ट आपको अच्छा लगता है उसको स्केच करिए, उसका बारे में डिस्कशन करिए। थोड़ा तो पता हो, कम से कम आपको 10 साल का बाद पता होना चाहिए कि मैं इस सेंटर गया था, कि म्यूजियम गया था, ये तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो फिर उसका बाद मैं उसी हिसाब से प्लान किया, ज्यादा स्टूडेंट को भी नहीं बुलाया, फिर उसी का साथ काम किया रेगुलर में। आज भी मतलब अभी तो कोरोना टाइम में कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा वर्चुअल भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस उसका हैमरिंग क्या, क्योंकि स्टूडेंट फिर जाके वो इंडिया गेट में बैठेगा तो उस टाइम कम से कम याद आएगा कि नहीं मैंने एनजीएम स्टूडेंट का टाइम किया था। तो देखिए 15,000 शाम को 15-20 हजार लोग बैठ जाते हैं, तो उसमें अगर 10% लोग एनजीएम में आ जाते हैं मैं खुश हो जाता, क्योंकि वो सेंस धीरे धीरे हमारा कहाँ है कि वो कनेक्शन जा चुका है, वो फील नहीं करता है कि मेरा आर्ट। अभी राजा रवि वर्मा का पेंटिंग हम उपेंद्र महारथी का पेंटिंग हम डिस्प्ले किए थे। हमने कोशिश किया कि उसी एंगल में हम प्रेजेंट करें कि कैसे वो रूट का साथ कनेक्ट, मतलब वो उसी टाइम में एनआईटी के बारे में सोचते थे। मतलब ऐसे अभी मेरा ख्याल से 1930 का बात होगा, उसी टाइम वो डिजाइन सेंटर का बारे में सोचे थे, वो बनाए भी थे। तो किस तरह का सोच था और किस तरह का वो लोग काम करते थे आर्टिस्ट, और सेंटर के लिए कैसे सोचते थे। सिद्धार्थ तो अभी एनआईटी से पास आउट किया, लेकिन वो 1930 का बाद जब होता है उस टाइम कुछ भी सुविधा नहीं था, किसको कैसे समझाए, क्या करे, और किस तरीका हमारा जो क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, एक्चुअली मैं क्राफ्ट्समैन बोलना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली वो इंडिजिनस आर्ट है, उसको हम इतना नेग्लेक्ट किए, सोच भी नहीं पाते। कभी कभी मैं जंतर मंतर देखता हूँ ना, वो जो कारीगर ने बनाया होगा उसका सेंस कितना आगे होगा, सोच भी नहीं सकते। वो भी क्या आर्टिस्ट है, किसी मतलब राजा मानसिंह ने बनाया, लेकिन जो क्राफ्ट्समैन उसमें काम किए तो कितना उनका ताकत होगा कि इस तरह के चीज को प्रेजेंट कर पाए। जब प्लेन का भी शुरुआत में सोचे होंगे, वही कारीगर लोग ही काम करते हैं। मैं गांव में देखता हूँ जो पानी का सिस्टम है वो भी कारीगर ही बनाता है, और उसी का हिसाब से कोई भी हम सोचते हैं तो सारी चीज कारीगर इतना मतलब सीरियस उसको भूल गए, क्योंकि आर्ट एंड साइंस साथ में जुड़ा था कि आर्ट एंड टेक्नोलॉजी मतलब आर्ट का अभी कल्चर मिनिस्टर भी अलग हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री में था, अभी मिनिस्टर भी अलग हो गया, कल्चर मिनिस्टर अलग है। तो पूरा धीरे धीरे हम पूरा अलग कर दिए, कहाँ से कनेक्शन नहीं है बिल्कुल। हम कुछ बात करते हैं बस अभी एग्जीबिशन होता है, हम 340 आर्टिस्ट में होते हैं, मैं आपका तारीफ करता हूँ, मैं आप मेरा तारीफ करते हैं, बस हो गया। मतलब एक्चुअली इतना हम इंडिविजुअल सोच भी नहीं पाते हैं, और इसी हिसाब से जब सेंटर का बात आता है तो बहुत साइलेंस मतलब यहाँ पर जितना भी कोशिश किया 3-4 साल में वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। लगा कि नहीं सेंटर के लिए आस एजुकेशन का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्लान कर रहे हैं कि सेंटर बनाए जो कि गवर्नमेंट में प्लान कर रहे हैं कि जैसे आईआईटी है कि इस तरीके का एजुकेशन आर्ट में भी होना चाहिए, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जो कि वहाँ सारा चीज मतलब सारा क्राफ्ट्स जो सेंटर वहाँ पर ऐसे कुछ काम करते 729 क्राफ्ट्स
तो सभी फैमिली के साथ इंटरैक्ट करना अरे इतना इजी नहीं है। इसी हिसाब से तैयार करते कभी 300-400 एकड़ जमीन चाहिए, जहाँ पर इस तरह का सेंटर हो कि जहाँ सारी क्लास वहाँ पर हो और साथ में आर्ट कॉलेज हो, कि साथ में आर्ट कॉलेज वैसे कंटेम्परेरी जो वो एक्चुअली गुरु तरफ से जो क्राफ्ट्समैन है, गुरु जैसा है, वहाँ पर एक स्टूडियो बने उनके लिए छोटा सा म्यूजियम उनका घर जैसे गुरुकुल में स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए जाए, आर्ट कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, उनका जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पर जाए, गुरुकुल जैसा वहाँ पर जाए, उनका साथ इंटरेक्ट काम करे, उनका साथ जरूरत होता है तो उनका साथ रूट भी जाए। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि जब एक्चुअली हम जब सोचते हैं अभी हम टेक्सटाइल में ऊंचे थे और कभी रिंग का टेक्सटाइल ढाका कमल का भी करते हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, कहाँ किसी लेवल में थे जब सिस्टम बाहर से आया कि हमको जितना हम डिवाइड कर सकते इतना हम अलग किए और सेंटर भी म्यूजियम में इस तरह का कि कभी मैं भी काम करता हूँ, लेकिन वो म्यूजियम का डेड जैसा लगता है, वो फील नहीं कर पाते क्योंकि जैसे कि शरीर मेडिकल में होता है ना, उस तरह का फील होता है। वो एक्चुअली हमारी कल्चर खत्म नहीं हुआ, दूसरे का कल्चर हो गया म्यूजियम बनाए। अभी हम लाइव में है, कहाँ भी जाइए वही क्राफ्ट्समैन का पास, वही आर्टिस्ट का पास है, सब कुछ है। अभी सब लाइव में, उनको कोई नहीं देख रहा है। बस हम इस तरीके का जो बात मैं सरकार में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इस तरह का बात है जो हम तैयारी कर रहे हैं कि वो फील नहीं कर पा रहे हम। वो फील करना बहुत जरूरी है। जब उसको जागरूक करेंगे, उसका साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो सब कुछ बना सकता, वो सोचिए वो व्हीकल भी बना सकता, लेकिन उसको हम अलाउ नहीं करते, देखने के लिए भी उसका जहाँ व्हीकल बनता है अलाउ नहीं करते, वहाँ आ नहीं पाता। आप सोचिए कारीगर अंदर आएगा, आपसे सामने से इतना बड़ा गेट होगा, करता होगा, तो ऐसे तो डर जाएगा ना। वो वेलकम होना चाहिए हर जगह में। अच्छा बिल्डिंग दिखाना चाहिए, अच्छा जहाँ इंडस्ट्री में आना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर बात रहे कि हम आत्मनिर्भर से बात हो रहे, तो मेन पॉइंट है कि जब तक चांस नहीं देंगे, हर जगह में काम कर सकते, सिस्टम बनाए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है कि उसका नीचे जो IIT में मेरे जो पास आउट करते हैं वो लोग पियोन के लिए अप्लाई करते हैं, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करता, इंजीनियर हो ना IIT कोई भी चाहते हैं बनने के लिए, प्रैक्टिकल काम करने के लिए आगे नहीं आता है। मेन होता तो हमारा जिसको हम कारीगर हैं वही मेन होता था, वही सारा कुछ गांव में कैसे होगा, लाइफ का कैसे गांव में कुछ भी चीज था वही बनाते। अगर लड़की का भी शादी होता था वहां पर गांव का सोच नहीं सकते, गांव का शादी होता था। मतलब वहाँ कोई कारीगर में कोई पत्थर पे कोई लकड़ी में कुछ बनाते सारी मतलब एक जो रिलेशन लाइफ का साथ वहाँ लाइफ का साथ था। वो सेंटर इस तरह का लाइफ होना चाहिए कि उसको बार मैं बोलता हूँ, उसको फील करने के लिए एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अब सोचिए नालंदा जो बना पता नहीं अभी उस तरह का किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पर सारी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, 10,000 रेसिडेंसी स्टूडेंट किस तरह का सोच होगा और किस तरह का कांसेप्ट बड़े मॉन्यूमेंट देखिए। अभी छोटा उस टाइम लोहा भी बनाते थे, मिट्टी का आजकल टेक्नोलॉजी इतना मिट्टी को प्लास्टिक जैसे भी बना सकते, लेकिन हम नहीं करते कि मिट्टी का साथ नहीं करते। हम अलग से साइंस से काम करते हैं, हम कंटेम्परेरी आर्टिस्ट अलग से काम करते हैं, इंजीनियर काम करते हैं। तो ये एक हाई टाइम हो गया कि हम लोग सब एक जगह में मिलना चाहिए। हो सकता है झगड़ा भी करिए, मारपीट करिए, कुछ निकलेगा। वो सेंटर का मेन उद्देश्य होता है वही सेंटर। मैं इसी सोच के यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, 7 रिजल्ट मिलेगा। तो इसके बारे में हम चर्चा कर सकते। सबको धन्यवाद। I have known 5 or 6 previous director of the National Gallery of Modern Art
Lalit Kala Academy, etc., being in the profession for a longer time. And Gurnaik is young, and he is being a visionary. Frankly, he said something very interesting, that museums are done, as I said, in Hindi it's called Sangrahalay, and in Bengali it's called Jadughar. So any of the culture, any place which has lost its craft, dance and music, then they would do a museum to restore and to archive and to keep for future generations. In our country, many lanes open museums. So the other important point that he's bringing into discussion is the synthesis between traditional and contemporary art, synthesis between education and culture, science and culture. So we have misnomer and misgivings in a very hodgepodge situation. We have not imbibed from our tradition. We have not looked at the East. Japan, China, Southeast Asia, Korea is much more akin to our ethos and our values. So when we say art center, like Raghurajpur in Orissa, or Malela, the clay, Rajasthan, where the clay workers do relief work, and so on. Kumartuli, that's a modern thing in Calcutta. But there are thousands of places where we have weavers, sculptors, painters, toy makers, makers of brass and bell metal, etc. So, and we have inherited the academic colonial system of education. Not a single art school has the input of traditional art. In JJ, we learned about miniature painting and that's all. In schools, they don't have it. So frankly, when we talk of an art center, the home has to be an art center. Then your primary school. Many schools that I have been, and when I go for a lecture, etc., they show me their art department is there. I say, but your walls are hungry outside. Why is not art spilling out of your classroom? So, Mr. Gurnaik, please let us know that these art centers that we have in Delhi, for instance, are we working in collaboration? Are we sharing expertise? That is one. But all this cannot be done unless it also starts from a grassroots level. Home, school, university, art college, etc. But at your level, have you thought of, or are you thinking of connecting, like you have NGMA in Bangalore and in Bombay? Is there a proposal to have NGMA in every state, number one? Number two, in Delhi, since there are about 8 or 10 art centers are there of different form, do you have a collaboration? Does it consider education? Because you mentioned about Upendra Maharathi, who is originally from Orissa. 99% of the people in Orissa do not know about him. But I was told that the government of Bihar spends 300 crore to bring children to museums. Thank you. Please continue. एक्चुअली ये बात मैं जब ज्वाइन किया शुरू से मैंने सोचा है कि यहाँ आईजीएनसी है, ललित कला एकेडमी है, आईसीसीआर है, हम सब कोई फाइन आर्ट के लिए काम कर रहे हैं। आईसीसीआर भी शो करता है, हम भी शो करते हैं, ललित कला एकेडमी शो करता है, आईजीएनसी वाला भी शो करते हैं, लेकिन किसका साथ कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडिविजुअल सारे लोग हम काम करते हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम इवेंट करके हम उस पैसा को खत्म करते हैं। लेकिन वो मेरे को लगा है वो इवेंट आप करते रहिए, लेकिन आपको तो बात में रूट का साथ कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर उसी रूट में हम काम नहीं करेंगे साथ मिलके तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आईसीसीआर जो शो बाहर भेजते हैं वो, क्योंकि एक्चुअल जो एक्सपर्ट है, जैसे एनजीएम हम प्रॉपर शो डिजाइन कर सकते हैं, उनको होना चाहिए कि एनजीएम उसको शो को डिजाइन करे, लेकिन आईसीसीआर डिजाइन करेगा तो होगा नहीं कि उनका पास इस तरह का सिस्टम नहीं है, कि इस तरह का कुछ भी नहीं है कि आईजीएनसी भी हो प्रॉपर। लेकिन जो जिसको मिलना चाहिए उसी हिसाब से काम करना चाहिए। हमने बात किया था, लेकिन सरकार में ऐसे नहीं होता है क्योंकि हमेशा स्टाफ चेंज होते हैं। आज कोई
डीजी है तो नेक्स्ट ईयर कोई चेंज हो जाता है, आज कोई सेक्रेटरी है तो नेक्स्ट ईयर वो नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट में इस सारी सिस्टम में कुछ बात आप जो फॉलो अप करते हैं, जो वहां पहुंचना टाइम वो फिर चेंज हो जाता है। इस सिस्टम एक्चुअली अंदर से आना चाहिए। सिस्टम का एमओ मतलब ऐसे एमओ करके नहीं कर सकते, अंदर से सोच के हमको करना पड़ेगा। जब संस्था भी बनाए हुए उस टाइम कि ललित कला एकेडमी को क्या करना है, उस टाइम उनको पता है कि आर्टिस्ट का मेन संस्था था ललित कला एकेडमी, जो डायरेक्ट कनेक्ट करता था और उनका साथ पूरा रिलेशन था कि कैसे उनका प्रॉब्लम हो कुछ भी हो उनका साथ ही था। तो धीरे धीरे ये सिस्टम ऐसे हो गया कि हम छोटे छोटे व्हाट्सएप करते हैं और छोटे छोटे इवेंट में हम सेंटर को रुक लिया, आगे सोचा भी नहीं है। क्योंकि चाइना आप देखेंगे 10 साल में इतना आगे चला गया, सोच भी नहीं सकते। हजारों म्यूजियम बनाया, आर्टिस्ट के लिए कॉलोनी पूरा बनाया, आर्टिस्ट का डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट का जैसे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट पूरा आर्टिस्ट है। आप सोच भी नहीं सकते इसी एंगल में इतना वास्ट स्केल में म्यूजियम। वो उनका सोच, क्योंकि उनका सारी मिलके एक ही सोच करते हैं, उसमें ही काम करते हैं। ये सोच यहाँ भी होना चाहिए, प्लान में होना चाहिए। और स्पेशल जो एजुकेशन का बात की है, एजुकेशन पूरा हमारा चीज को बर्बाद किया, बिल्कुल नहीं है। हमारी जो सिस्टम होना चाहिए, हमारी एजुकेशन में मतलब जीरो, हम पढ़ाई करते हैं वेस्टर्न से और खत्म वहीं करते हैं। और सिस्टम ऐसे हो गया कि उसको हम जो स्टूडेंट यहाँ से निकलता है उसको लेके ही आगे चलता है। वो मतलब ऐसे उनका मन में भी ऐसे आ जाता है कि नहीं यही है मेरा एजुकेशन है और ये सारी क्राफ्ट है, इसका साथ कोई लेना देना, जैसे अछूत मानते हैं कि इसको फ्रीज कर दिया, जैसे आगे नहीं आ सकता है और इसका दिमाग नहीं है, लेबर है, उस तरीका उसको ट्रीटमेंट भी करते हैं। वो मतलब बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि उनका साथ जुड़ने के लिए। शांति निकेतन में गुरुजी शुरू किए थे बातचीत, जब वो उस टाइम हो गया, अभी भी वो शांति निकेतन में वो स्थिति नहीं है जो था भी उसी टाइम। तो धीरे धीरे सबको लगा कि ये तो कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्ट कॉलेज से जो पास आउट हो जाता है वो बोलता है मैं आर्टिस्ट हूँ, और वो बातचीत भी ऐसे करते हैं कि नहीं अरे मेरा ओसी गैलरी की मैं इतना 1 साल के लिए बिजी हूँ, 2 साल के लिए बिजी हूँ, और यहाँ पर ये मतलब सारी जैसे बिजनेस होता है ना उस तरीका है। मैंने कभी कभी लगता है इससे बेहतर है कि आलू का बिजनेस करो, सुबह ट्रक में लाओगे शाम को पैसा मिल जाएगा, आपको महीना भर बिजनेस भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस तरह का स्थिति हो गया, किसको बात करो वो पैसा का बिना आगे कुछ कोई स्टूडेंट भी हो कि कोई आर्टिस्ट, इस तरह का हो गया कि जो शुरू से मैं बता रहा हूँ मार्केट ही सब कुछ हैंडल कर रहे। स्पेशल जो प्राइवेट गैलरी वो लोग भी इस तरह का स्थिति में तैयार किए कि अपना आर्टिस्ट को लेके सारी सिस्टम बनाना, उसको मतलब ऐसे बोल दें कि ये टॉप 10 आर्टिस्ट है आप, मतलब इस तरह का भी सिस्टम हो गया कि किस तरीका हमको हमारी चीज को सेल करना है, इसको ब्रांड बनाना है। तो उसी में हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और रिसर्च डेवलपमेंट जो होना चाहिए उसके ऊपर हम कोई भी प्राइवेट गैलरी अगर सेल भी कर रहे हैं, कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, कम से कम उसके लिए सेंटर बनाए कि जो उसके लिए हेल्प करे कि रिसर्च डेवलपमेंट हो, कैसे हम हमारी रूट का सब कनेक्ट करें। वो भी अगर हो सकता तो एजुकेशन के लिए थोड़ा फायदा हो सकता। गवर्नमेंट में जो सिस्टम चल रहे हैं वही सिलेबस 50 साल पुराना है, वही चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं है और कोई सोचता भी नहीं उसके लिए। तो ये बहुत सीरियस टाइम हो गया कि हम आर्ट, अभी तो हमेशा एक्सचेंज वैल्यू का बात करते हैं, अभी हाई टाइम हो गया हम द यूज वैल्यू ऑफ द आर्ट बात करना बहुत जरूरी है। जब यूज वैल्यू का बात नहीं करेंगे तो ये सारी सिस्टम नहीं होगा, लाइफ का साथ कैसे जुड़ेगा, क्या होगा, ये सारी सोचना पड़ेगा हमको सेंटर। I think ये हम सबकी फ्रस्ट्रेशन है। आई एम श्योर इट रेजोनेट्स विथ एवरीबडी कि कैसे हम आर्ट जब एजुकेशन में नहीं है, हमारे घरों में नहीं है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मास्टर क्राफ्ट्समैन के बच्चे अब सड़क बना रहे हैं, बिल्डिंग में माइग्रेंट वर्कर्स हो गए हैं, दे डोंट वांट टू कैरी ऑन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और एनजीएमए जो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इट्स वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, इट्स इन द कैपिटल सिटी, 2 और उसके ब्रांचेस भी हैं बैंगलोर और बॉम्बे में, उसके बावजूद आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सोच सकते हैं छोटे छोटे आर्ट सेंटर्स का क्या हाल हो रहा होगा। आपको क्या लगता है कि बिकॉज हमारा कंट्री एक तो इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा है, ज्यादातर जो पेंटर्स, क्राफ्ट्समैन, विमेन कम्युनिटीज, स्कल्प्टर्स, ये सारे अलग अलग देश के भागों में है। सो व्हाट शुड बी डन
to increase a greater presence of art centers in regional areas. जैसे JDCA वही कोशिश कर रहा है कि उड़ीसा में है, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट तो पूरे देश का है, बाहर के देशों का भी की चीजें भी है हमारे पास. तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सेंटर्स और खुद आर्टिस्ट हैं जो ये करना चाहते हैं. उनको किस तरह का सपोर्ट क्या सरकार को देना चाहिए? शुड वी बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट? शुड वी बी डिपेंडेंट ऑन आर्ट फिलैंथ्रोपी? है क्या ऐसे लोग जो इसकी अहमियत समझते हैं? I mean, what in your mind is the solution? क्योंकि आप स्कल्प्टर भी हैं, तो आप आर्टिस्ट कम्युनिटी से भी हैं, और अभी आप डायरेक्टर जनरल हैं, यानी आपके पास एक सेंस में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ, शायद कुछ कर पाने की. तो आपके मन में सोल्यूशन के हिसाब से क्या है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, मैं देख रही हूँ नाम, आर्टिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पीपल हु डीपली केयर अबाउट दिस. तो आप कुछ हमें सजेशंस भी कर दे सकते हैं क्या? एक्चुअली जैसे जेडी आर्ट सेंटर काम कर रहे हैं, एक्चुअली अभी क्या सिस्टम हो रहे हैं, मेन सिटी से कॉन्सेप्ट फ्लो कर रहे हैं मतलब गांव तक, ये उल्टा हो रहा है. एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए, गांव से मेन सिटी तक आना चाहिए. अभी जो हम मेन सिटी से गांव ले रहे हैं वो उल्टी कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे. मेरा म्यूजियम का अंदर वो नहीं आ रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लगता नहीं है मेरा आर्ट. वो फील करता है अच्छा ठीक है आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, बहुत फिलोसफी, बहुत आइडिया है, बहुत बड़े बड़े बात है, उसको लगता है कि ठीक है आप ठीक है, लेकिन ये मेरा नहीं है. तो जब छोटे छोटे स्टेट्स हो, छोटे छोटे शहर से हो, गांव तक भी, वहां से जो बात आएगा और उसको हम प्यूरिफाई करके प्रॉपर पैकेट करके, आजकल तो सारी पैकेट का ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे आप पैकेज कर रहे हैं. तो प्रॉपर उसको पैकेज करके अगर हम बना सकते तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया के लिए. क्योंकि जो बात रियल बात है, अभी गांव में भी अभी थोड़ा बहुत है. अभी शहर में हम आर्ट कॉलेज बनाते हैं तो क्या सीखता है, यहाँ कैसे बदमाश करेगा, कैसे टाउटिंग करेगा, कैसे पॉलिटिक्स करेगा, ये सारी शहर मैं भी 2-3 साल में अभी थोड़ा बहुत सीख लिया सारी चीज, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर आपको सब कुछ सिखाता है. तो उसी हिसाब से आप काम भी करते हैं, आपका काम का रिफ्लेक्शन उस तरीके भी होता है, क्योंकि आपको वो बैकग्राउंड से आप आए नहीं, शहर में पढ़ाई किए, शहर का चीज को लेकर काम किए. जब उसी तरह का एटमॉस्फेयर रहते हैं और गैलरी का साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है. तो जैसे जेडी आर्ट सेंटर कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश में हर स्टेट में एनजीएम का ब्रांच होना चाहिए. हम कोशिश भी कर रहे हैं और उसका प्लान भी काफी जगह में हम तैयार भी कर लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्लान कर रहे हैं, चंडीगढ़ में प्लान कर रहे हैं, उड़ीसा में भी प्लान कर रहे हैं. तो इसलिए जब होगा इस तरह से, जैसे हमारा इच्छा था कि जतिंदर से भी हम बात कर रहे थे कि हम मिलके भी कर सकते, अगर एनजीएम का ब्रांच होता है तो मिलके हम कर सकते, तो फिर हमको हेल्प हो जाता है. नहीं तो आप किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां आपको मतलब अकेला लगता है, मुश्किल हो जाता है. क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है, आप कोई ऑफिसर यहाँ बैठ जाएगा, वो अपना मर्जी में बस तनख्वाह लेना है और कुछ नहीं है. लेकिन अगर लोकल साथ में जुड़ जाता है तो इजी हो जाता है एक सेंटर को ग्रो करने के लिए, और सारे मटेरियल वहीं से मिल जाता है. तो इस तरह का हर स्टेट में हमको प्लान करना चाहिए. ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते कौन आर्टिस्ट है, कौन आया, काम किया, कहाँ चला गया, कुछ भी पता भी नहीं है. ओडिशा में भी हमारा काफी सीनियर आर्टिस्ट, जैसे जतिंदर को भी पता होगा, काफी सीनियर आर्टिस्ट यहाँ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज पास आउट किए होंगे, वहां काम किए, कहाँ चले गए. मेरे एनजीएम के कलेक्शन में भी उनका नाम भी नहीं है. आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो शहर वाला आसपास घूमते हैं हम उनका काम ले लेते हैं, लेकिन उस तरह का हम एरिया को जाते भी नहीं. इसलिए वहां सेंटर होना बहुत जरूरी है, जो कि सारे डाटा उनका पास होगा, उनका साथ मिलकर गवर्नमेंट काम कर सकता है, तो ये सारी चीज ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं होगा. तो इसलिए जेडी आर्ट सेंटर जैसा हर स्टेट में होना चाहिए हेल्प करने के लिए एनजीएम को. और इस तरह का बातचीत भी चल रहे हैं किस तरह का हम सेंटर बनाएंगे. जैसे आपने बताया कि हर स्टेट में एनजीएम है तो विल बी स्टार्टिंग फ्रेश, तो व्हाई शुड वी रीइन्वेंट द व्हील? जेडीसीए जैसे बहुत हर स्टेट में आई एम श्योर देयर आर पैशनेट पीपल जो कुछ करना चाहते हैं, उनको एक सपोर्ट चाहिए. तो इनफैक्ट यहाँ पर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है मिस्टर अरविंद पाढ़ी, उनका एक सवाल है. उन्होंने कहा थैंक्स फॉर द वंडरफुल थॉट्स,
what are your specific suggestions to the government policy space to improve the scene in promotion of art and culture? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम एक लेवल पे हम सबको अब पता है, राइट? आपने जैसे कहा कि एनजीए में भी इतना बड़ा गेट है, वो हम आधे लोग तो उसी से डर के नहीं आएंगे, इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग। हमारे जो बड़े बड़े ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें लोग जाएंगे ही नहीं, तो इवन दो द टिकट में बी वेरी चीप, मे बी यू आर नॉट स्टॉपिंग एनीबडी, बट येट पीपल विल नॉट गो। तो उसके लिए अब हम लोग, क्योंकि सारे आर्ट से जुड़े हुए ही ज्यादातर लोग हैं, हम अगर एक्चुअली सोचने लगे कि वो क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो हम करके, जैसे फॉर इंस्टेंस, आई यू मेकिंग एनजीए में मोर इंक्लूसिव? क्या आप कुछ ना आपने इन 4 सालों में कुछ किया जिसकी वजह से लोग कम डरे या ज्यादा लोग आ सकते हैं, चाहे वो कॉलेजेस से आए, स्कूल से आए? दूसरी बात, क्या आप इस तरह के पार्टनरशिप के लिए ओपन हैं, जैसे एनजीए में अगर जेडीसीए के साथ पार्टनर करें या दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन? सुबह प्रसन्न ने एक कलकत्ता में जैसे उन्होंने एक सेंटर खोला है, सब हर आर्टिस्ट का उतना बैंडविथ ही नहीं है कि वो अपने बलबूते पे करे, राइट? वो किसी तरह कलेक्शन, जैसे जेडीसी में वी हैव एन अमेजिंग कलेक्शन, पूरा कलेक्शन डोनेट किया जा रहा है, येट वी डोंट हैव स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स। जैसे इंडस्ट्री में प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, तो आर्टिस्ट कम्युनिटी कैसे पार्टनर करें? यहाँ अर्पणा जी भी हैं, अर्पणा कौर, शी also has an amazing art center. Maybe you can also share some of your struggles and also solutions. I think we should also try and focus on what we can actually do, and as a community how can we help each other. तो अर्पणा जी भी जो सेंटर बनाए आप देखेंगे तो वो इतना अच्छा मेरे को लगता है कि नहीं, किस तरीका, मतलब जो सिलाई मशीन से शुरू किया, सोच भी नहीं सकते, तो इतना छोटे चीज को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो एक्चुअली मेरा भी ऐसे सोच था कि गांव से आप सोचिए, एक गांव छोटा सा भी लीजिए, गांव का भी कुछ हिस्ट्री होता है। एक गांव में मेरे इच्छा था कि छोटा सा म्यूजियम ही हो, उसका अंदर वो सारी चीज रखे, उसका कि हजारों साल पुराना है, 200 साल पुराना है, कि गांव का भी एक हिस्ट्री होता है। तो उसी हिसाब से अगर गांव से उसको पता होता था कि ये मेरा हिस्ट्री है, ये मेरा कुछ लिखते हैं सारी प्रोसेस, लेकिन उसके गांव तक पहुंचने के लिए इतना, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच सकते हैं, वहां से उसको कलेक्ट करके कैपिटल तक हम कुछ कनेक्शन कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि आउटरीच प्रोग्राम हमको बार बार करना पड़ेगा। पब्लिक अभी एनजीएम को 4 दीवार के अंदर रहना नहीं चाहिए, ये बिल्डिंग से बाहर होना चाहिए। और जितना हम आउटरीच प्रोग्राम करें पब्लिक का पास, किसी आर्टिस्ट का पास जाके भी, आप नॉर्थ ईस्ट में किसी आर्टिस्ट का पास आप पूछ जाके बैठ जाइए भी, उसका भी इतना खुश हो जाता है वो काम में, अगर खाने भी नहीं है भी खुश हो जाता, कुछ भी नहीं दीजिए फिर भी उनका साथ अगर बैठ गए भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो एनजीएम में सिर्फ यहाँ 4 दीवार के अंदर नहीं रहना चाहिए, हमको आउटरीच प्रोग्राम इतना करना चाहिए, पब्लिक का पास के आर्टिस्ट का पास पहुंचना चाहिए, उसका साथ जो कुछ है। अभी तो कोरोना टाइम है, इसमें बहुत कुछ हम मतलब वर्चुअल जो कुछ कर सकते हैं, अभी जिससे भी बात करते हैं अजीब सा लगता है कि इस तरीके के आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं है। आर्किटेक्चर आप देखिए, उनका एक कम्युनिटी होता है, उनके लिए कुछ फंड होता है, कुछ आर्टिस्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए भी हेल्प करते हैं। इस तरह का भी उस दिन आर्ट अड्डा में हम बात कर रहे थे, आर्टिस्ट कम्युनिटी भी सोच रहे हैं कि हम भी खुद चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि कोई भी किसका प्रॉब्लम हो गया कम से कम वहां हम खड़े हो जाए, थोड़ा नहीं हमारा आपका पीछे है। तो इतना भी सपोर्ट अगर मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए बहुत इस तरह का प्राइवेट संस्था को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना कुछ सिस्टम नहीं है जो कि साथ साथ मिलके ये सारी चीज कनेक्ट करे। मिस्टर ललित मानसिंह हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। आपको पता है, he has been the DG of ICCR, one of the premier cultural institutions, a very senior bureaucrat, was our foreign secretary, और JDCA के बिल्कुल शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हैं और ट्रस्टी हैं। Mr. Garnaik, good to see you, and I was very impressed and inspired by what you said. What struck me was that when you talked about the arts of our country and the crafts, you said change the word crafts to indigenous arts, right? I think that's the right attitude, because I'll begin with that. And I'm not speaking as a bureaucrat, but only as an art lover. What I see is a different situation here, where we are ignoring the fundamentals.
The fundamentals are that while art can be a passion, an artist has also a family to maintain. And unfortunately for the practitioners of our indigenous art, it is no longer, the income is no longer sufficient to maintain their families. A driver can get 20,000 rupees as a salary, but a Patachitra painter can't make that much. They also have their needs. So here is what I'm suggesting, that one of our discussions should be on what I think is the economy of art. Because art is now competing in what I call a monetized, a globalized, a digitized economy, and is not finding its rightful place. I've seen this happening in Orissa. The children of Chitrakars don't want to be Chitrakars. The children of sculptors don't want to be sculptors. The children of the weavers are going to places like Surat to act as workers in mills. That's a tragedy. So let us also focus a bit on why the great creators of indigenous art are not able to meet their ends, and what we can do to change the situation. And I think amongst the suggestions should be, they need support in terms of what the market demands. They should get the right price for their products. I think they are always undersold compared to other kinds of art. And therefore we need to focus some attention on what I think are the disappearing indigenous arts of India. Okay. Now I come to the second point, which you have raised interestingly, and that reminded me of my ICCR days. When I came as DG ICCR and I found that there was a vast mandate, I found that one of the neglected areas of the ICCR was in fact the arts. The focus was always on the performing arts. You know, the dancers, the musicians got all the attention, and much of the resources of projecting the arts of India went into the field of performing arts. So I started trying to educate myself and to get in touch with great minds that could educate me. So I went to the chairman of the Lalit Kala Academy. The NGMA was not that active an institution then. And it had a great artist called Sankho Chaudhary. And Sankho Chaudhary invited me to join one of his committee meetings in the Lalit Kala Academy. And I was horrified that it was not a civilized discussion amongst artists, which I was expecting, but a kind of civil war amongst the artists when they were hurling abuses at each other. And I've seen them throwing things at each other. I came out and told Shankoda, I said, what is this? I'm really amazed. He said, I'm sorry, the artists also want to be democratic, and so they want to have their say. I want to bring this to your attention because I think we, to some extent, managed to bridge that gap by Sankoda saying, I know LKA is not receiving attention, is not receiving funding. You seem to be interested and you seem to have the funds. Let us work together. And we work together. But mind you, the very fact that the ICCR was showing interest in the arts became an issue amongst the artists, and some of them, very prominent ones, I won't name them, saying, what is the business of the ICCR to do things about art? What do they know about art? When I suggested a program saying those line drawings, which are part of our art heritage, starting from K.K. Hebbar to Gujarat, every artist, Jatin Das, everybody has done fantastic line drawings. I said, these are inexpensive, they can be easily reproduced, and I can use the machinery of all our embassies abroad to promote the works of our artists. And the first opposition came from the artists themselves, saying, no, who are you? Why should you do it? But eventually we managed to do it. So I want to suggest something, that saying that people are working in different compartments, that's a fact. But the only way to break it is like what you have done, Mr. Gadnaik. You have reached out. Reach out to the ICCR, reach out, like you have reached out to the Maharati family, and you have helped bring
Upendra Maharathi to the attention that he deserved. That's the kind of work I think you should continue to do. And I think you have the cooperation of all of us who are listening and many more who are not, who are willing to join you in this venture. Thank you. मैंने बनारस में राम छाटपर शिल्प न्यास के नाम से एक आर्ट सेंटर तैयार किया है और पूर्ण रूपेण ये म्यूजियम का एक शेप भी ले रहा है। संजोग से बड़े सौभाग्य की बात है कि 150 स्कल्पचर शंखो चौधरी की फैमिली ने इस म्यूजियम को डोनेट किया हुआ है अनलिमिटेड टाइम के लिए। एक बहुत बड़ा ये मतलब एक अचीवमेंट है राम छाटपर शिल्प न्यास वाराणसी के लिए कि इतनी बड़ी एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े मूर्ति शिल्पी का कलेक्शन हमारे पास में है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे देश में इस तरह के प्राइवेट म्यूजियम्स आर्ट सेंटर्स जो है बहुत कई एक संख्या में हैं। गणनायक भी जानते हैं कि हम लोग एक बार पार्टिसिपेट किए थे बड़ौदा में, उत्तरायण करके एक बड़ा आर्ट सेंटर है। वहाँ के भी जो इसको डेवलप कर रहे हैं उनकी भी सबसे बड़ी चिंता है कि आने वाले फ्यूचर में इतना बड़ा कलेक्शन का देख रेख कैसे ही प्राइवेट लोग या हमारी फैमिली या दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं। इसी तरह एक बार हमने सुना था कि सुब्रमण्यम साहब से कि आपके हैदराबाद के जैन साहब, क्या नाम उनका, जो बहुत बड़ा मिनिएचर पेंटिंग के कलेक्शंस जिनके पास में था, वो चाहते थे कि इस कलेक्शंस का एक कोई संग्रहालय बने। और भी इस तरह से बहुत जगह पर लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं। मैं अद्वैत गणनायक जी से कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी सेंटर्स इनके नॉलेज में है या हम सब के नॉलेज में है, इनकी चिंता भी करें कि जो प्राइवेट ढंग से जो अपना एक प्रेम के वजह से, इतने एक विचार के वजह से एक आर्ट सेंटर्स को डेवलप किए हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ एक मतलब कोई किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन एक संरक्षण चाहिए, इसका फ्यूचर चाहिए। वो किस तरह से आप इस फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं, वन पॉइंट। दूसरी चीज है कि जब हम ये छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे शहरों में इस तरह के आर्ट सेंटर्स को डेवलप करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के समुदाय के लोग जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे, अलग अलग जगहों में जाएंगे, निश्चित रूप से वो उत्सुक होकर के उन सेंटर्स में भी विजिट करेंगे। संभावनाएं हमारे देश में बहुत है। हम लोगों का जो जिस विचार से, जिस कॉन्सेप्ट से, जिस आइडियाज से इन चीजों को हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, इसके भविष्य के बारे में अगर एक बहुत बड़ा मूर्तिकार अगर हमारे आज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का डायरेक्टर है, तो वो एक अलग तरीके से इसके बारे में सोच सकता है या सलाह दे सकता है। इनको सबको एकत्रित करके उसके भविष्य के बारे में हम आर्थिक सहयोग की कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सहयोग है कि अगर शंखो चौधरी की करोड़ों की संपत्ति अगर बनारस में है, राम किंकर का स्कल्पचर है, सुब्रमण्यम का आर्ट है, जतिन दा की मेरे पास 2 ड्राइंग्स हैं, इनका संरक्षण आने वाले फ्यूचर में कैसे होगा। नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मैंने देखा है, आपका स्टूडियो देखा, आपका गैलरी भी देखा और बहुत सुंदर भी बना है, गंगा का पास है और वहाँ बैठे तो और कुछ बात होता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर भी बहुत नेचुरल है और हमने बैठे भी थे, शाम को बैठे थे। तो एक्चुअली ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। एक्चुअली ये सारे गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट का पास इतना सुविधा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी हम बार बार बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरह का चीज को कैसे भी हो, क्योंकि वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, हर जगह में पहुंच नहीं सकता। तो आपका हेल्प बहुत जरूरी चाहिए होता है कि मैं भी जब बनारस जाता हूँ तो आपसे मिलता हूँ, BHU भी जाता हूँ, क्योंकि कम से कम अगर लोकल लोग नहीं जोड़ते हैं तो हम कुछ नहीं। बनारस में भी एक प्लान है हम करने के लिए, आपको बताया था, तो हम साथ मिलके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है और ये प्राइम मिनिस्टर का जगह भी है, उनको बोलेंगे तो थोड़ा इजी, क्योंकि सारा चीज काम करने के लिए आर्टिस्ट तो पहले बहुत जरूरी है, थोड़ा पैसा का भी जरूरत होता है, जो सिस्टम अभी कोरोना टाइम में नहीं हो रहा। हम तो इससे पहले बहुत कुछ प्लान किए थे, मैं आके भी बनारस गया था कि वहां पर इस तरह का एक सेंटर बने जहां की लोग आके फील करें हमारा कल्चर। वो म्यूजियम इस तरह का हो कि जरूर नहीं होता है उसका अंदर कुछ भी नहीं होगा, कभी भी पागलपन होना चाहिए कि बनारस में बहुत लोग घूमते हैं। और मैंने देखा कि मेरा जो टीचर थे एंथोनी घुमले, वो बनारस में
बहुत मतलब 1-2 साल घूमे थे, सोच भी नहीं था सकते कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ बनारस घूम के जाके अपना काम करते हैं। तो बनारस जैसा जगह है वो सोच भी नहीं सकते, और आप जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और ये कोरोना खत्म हो जाए मैं तुरंत आऊंगा बनारस, और हम मिलकर प्लान करेंगे, जैसे होगा हम तैयार करेंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बड़े शहरों से कहीं ज्यादा संभावनाएं जो है इन छोटे शहरों में है, गांवों में है, इन क्षेत्रीय जगहों में है, जहां पर कि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से, जैसे जतिन दा ने व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा सब कुछ तैयार किया है, हमने तैयार किया है, और भी मतलब ऐसे बहुत लोग हैं। सुब्रमण्यम साहब ने शांति निकेतन में जो है विनोद दा के नाम पे एक सेंटर को तैयार किया है, अपना सारा धन, अपना जीवन का सब कुछ लगा करके। ऐसी चीजों के लोगों को मतलब केवल हमको है कि एक ऐसा मतलब गवर्नमेंट से कि एक यूनिटी में इन चीजों को आ जाए कि यह भी एक सरकार के द्वारा धन तो नहीं प्राप्त है, लेकिन उनको इसका आश्रय है। यह देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। शंको चौधरी की संपत्ति या किसी भी कलाकार की संपत्ति जो है वह किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानी जाएगी, वह राष्ट्र की संपत्ति मैं मानता हूँ। यहाँ पर देखा है कि कहाँ भी किसी आर्टिस्ट का काम है, हम शुरू से हमारा एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनको मैंने बताया कहाँ भी किसी आर्टिस्ट का काम है आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन उसको करना चाहिए, क्योंकि ये देश का धरोहर है, ये किसी का मतलब। तो उसी हिसाब से हम, और वैसे भी सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? आज अगर आप देखिए सबसे ज्यादा तो सरकार के पास है। प्रायोरिटी क्या है? आज हमारा हेल्थ का बजट 1% है। अगर हेल्थ का बजट 1% है तो आप सोचिए 8 का बजट क्या होगा, और डिफेंस का बजट क्या है। तो ये सब तो बड़े बड़े सवाल हैं। ये बातचीत हमारी चलती रहेगी। आई थिंक हमारे फाउंडर चेयरमैन ऑफ जेडीसीए मिस्टर जतिन दास कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से अपना हाथ खड़ा किए हुए हैं। ये गणनायक जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात किया, जैसे कि हमारा जेडी सेंटर बन रहा है, बनाने के बाद जब बिल्डिंग हो गया ना, मुझे वो पसंद नहीं है। पसंद नहीं मतलब नॉट द डिजाइन, बीवी दोषी हैज डिजाइन, बट जैसे कि हम सोच रहे हैं हमारा देश का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे रघुराजपुर है, जैसे कि महाबलीपुरम है, ये एक स्प्रेड आउट एक लिविंग म्यूजियम होना चाहिए। गणनायक ने शुरू में जो बात किया कि वहाँ डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर सब होते रहता है, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पोररी बोथ। लेकिन हमारे जो डिवाइड है, मुझे तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है अभी जब चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये शुरुआत से होना चाहिए, फैमिली में होना चाहिए। बहुत सारे, माफ करना, इफ आई टॉक अबाउट उड़ीसा, I have not seen a single family's house, the wall, where a painting or a patachitra is there. तो घर में तस्वीर ना हो, घर में म्यूजिक ना हो, और प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में ना, तो बाद में समाज में कहीं कुछ नहीं हो सकता। This is one hand. On the other hand, आपने बोला ना मैं भी चाइना गया हूँ, एंटायर चाइना में कितना आर्ट सेंटर, और ये इवन कुआलालंपुर में चकचुक रास्ता मार्केट है, 1 किलोमीटर का हैंडीक्राफ्ट है, 1 किलोमीटर का सिलाई का, 1 किलोमीटर है। तो हमारे देश में भी वही कल्चर है, बट 90% हमारा चोरी हो गया है, बाहर चला गया है। जैसे कि सबको मालूम है कि वीवर्स के लोग जाके और कहीं काम कर रहे हैं, और हमारा कोई चित्रकार जाके कहीं डायमंड कटिंग कर रहे हैं सूरत में, कि और कहीं काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्राफ्ट्समैन will go for other work, IT, this, that, etc. And it is so the government, private, corporate, everybody has to get together, not just purchase of art, not just funds. There has to be क्या बोलते हैं, एक कलात्मक बोध होना चाहिए, जिसके लिए घर में से शुरू होकर समाज में रास्ता तक पहुंचे हैं। जैसे कि आपने बोला ना करेक्टली, जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे में है, सब लोग घुस जाते हैं, और उसी का सामने नेशनल गैलरी नाट्य दरवाजा है, वो खड़ा है और अंदर नहीं जाते, और यहाँ 1% जाते तो वहाँ 90% लोग जाते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी में। सो वी हैव टू रीथिंक अबाउट, लाइक दिस इज अ मेटाफोरिक एग्जांपल ऑफ एंट्री। लाइकवाइज हमारे देश में क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट एंड रूटेडनेस,
कल हम जैसे कि उन्होंने बोला which is 100% correct, ये डेड आर्ट नहीं है कि म्यूजियम में जाकर संग्रहालय में ग्लास के पीछे रह जाए हैं. So we have to rethink about what is a museum. That's why I don't like the word museum. That's why I'm saying art center. So everything has to be an art center. दक्षिणा चित्र करके मद्रास में बना हुआ है. बहुत सारे आर्टिस्टों ने, जैसे कि मिस्टर लाल ने, मदन लाल ने भी बात किया, बहुत सारे आर्टिस्टों ने पास्ट में कोशिश किया है. लेकिन ये आर्टिस्ट का काम नहीं है. आर्टिस्ट का काम अपना काम करना है. मुझे मेरा पेंटिंग करना है. मुझे जब आर्ट सेंटर बनाने जाता हूँ, उसका मेरा टाइम, एनर्जी सब इसमें जाया हो रहा है. So this is frankly the job of the society and the government to come forward to look after, you know. तो इसी हिसाब से ये जो आर्ट सेंटर कैसे कनेक्ट होगा, अभी जो स्थिति है इस वेस्टर्नाइज्ड colonial decadent system है. After the British Raj till today there have not been a single new museum other than Bharat Bhavan बना है. There could be like in China, इन्होंने बोला hundreds of museums. JDCA तो बहुत समय से स्ट्रगल कर रहा है. आप में से कई लोग जानते हैं इसके बारे में, और इसमें भी हम चाहते हैं कि बहुत लोग इसके साथ जुड़े. सिद्धार्थ JDCA के साथ बहुत गहराई से जुड़े हैं. मेरे ब्रदर हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं ऑफ JDCA. I think you had an appeal, Siddharth. Would you like to share that? We have a volunteer program, so we get a lot of volunteers who apply. So we are very happy if a lot of young volunteers, interns, people who want to come and work with us. So please do apply. It's jdcenterofart.org, and we'll be very happy to kind of think about how we can work together. Thank you. This is a good idea. There could be exchange. There could be exchange we have of Mr. volunteers. Pitroda, who's just joined us. Sam Pitroda, who also has his roots in Odisha. Thank you for joining. My qualification is that I'm a friend of your crazy friend Jatin Das. Those who are not crazy have actually not changed the world. So we need more of all of you. Do you all know that Sam Pitroda draws every day and beautiful line drawings? Do you all know that he plays tabla? Do you know exactly. You don't have to be an artist to do that. Oh, there you go. You know that. They're all my telephone calls. Tani, can you spotlight it? Yeah. Do you know that JD Center of Art planning to do a little book called Choti Bohi, scientist sketchbook. So there's one JP Das doctor, a surgeon. He's and Sam Pitroda. We are planning to do a book. I'll be happy to answer questions and interact for 5-10 minutes, whatever Nandita allows. Go ahead. No, so I think there's a huge NRI community that you are very closely associated with, and we don't want to make it parochial while we all feel good about Odisha. But you know, we are now with the Zoom and everything. We're citizens of the world, citizens of this country. Yeah, no, it's fine. Yes, you have to be rooted, and yet you have to belong to every place. So, but as we have a large Indian community there, and there some like yourself have left India in their 60s, and often I see in my interactions their identity as an Indian either becomes through Bollywood or through religion. You know, how can we try and get the support of the NRI community in making them aware that art is not just, I mean, they also give money for education, they give money for sanitization, they've given money for, you know, more tangible things. Whereas art is still seen as this thing, and the connection with every artist, you know, a Raghurajpur artist is as much an artist as a Jatin Das is. So how do we create a greater and a deeper understanding in that community so that they can support? Because before, I don't know if you heard this conversation about how to support art. Let me give you my view, maybe very narrow view. See, all of us who came in 60s came to earn and decided to stay. Came to learn and decided to stay to earn. None of us have any sense of art, culture, philosophy, psychology, anthropology, all that. But our children are very different.
So if you address my generation, it's a lost cause. But if you address your generation, Nandita, or our children's generation, great connection. They understand art because they were comfortable. We were not comfortable. We came here. We had to survive. So art was on the back burner. Okay. Sure. Our children were brought up in an environment of comfort. So they are into poetry, they are into theater, they are into journalism. My own daughter, as you know, is in Hollywood making movies, producer. Yes. So because they didn't have to worry about survival. So we need to address not those who came in 60. Yes. That's the key. Okay. So if somebody makes a database and there is a huge amount of. But you need a database of 100, 500 young people who are in art. Then Nandita has to have a conference with them. We all have to. Let's get some of those people into these conversations. Please help us reach out to some of those people also in this conversation. This is in a way a closed door and yet open conversation. I'm also getting questions from the Facebook. This is on Facebook Live. There are young people asking questions also from Facebook. Unfortunately, we don't have the time, because something like this can carry on for a very long time because there are no easy solutions. So unfortunately, we'll have to stop here, but you need to look forward to seeing. Yeah, but you need to find 2-3 young people there who first create a database. No, definitely, and you'll help us with that. So we need people who are worldly wise to be able to steer all the good work that many artists are doing and the communities of art that, how do we work together? So sorry, I'm wrapping it up. We need to operationalize. We need to operationalize. We need to bring in some business and lack of a better word, to make it realize these dreams. At the moment, there's a lot of passion, there's dream, there's concern, there's commitment. But how do we realize these dreams? Let's continue the conversation. I hope to see all of you for sure, but each one of you, I hope, will also bring in 5 other people. We will also technologically become a little more savvy and make sure that we have the links right for YouTube and Facebook. It is still on JDCA Facebook. Also, if any of you want to connect with each other, because many people have spoken, please write to us on contact@jdcenterofart.org and we will find ways, because let this also be a place to connect with each other, and we don't know what doors that will open. Mr. Gadnayak, thank you very much for joining and kick-starting this online. अब ये तो pandemic है, कितने महीने रहने वाला है कुछ पता नहीं. Let's make this an opportunity to connect with people जिसके साथ हम लोग नहीं मिल पाते हैं. कितने सारे इसमें ऐसे लोग हैं, कहाँ एक साथ आ पाते हैं. तो इसको हम एक problem ना देखकर इसको एक opportunity देखें. Then how do we exchange these ideas, not just express our frustrations क्योंकि cathartic है, लेकिन साथ साथ कैसे इसको बदला जाए. हम अपने अपने रोल में क्या हम अलग कर सकते हैं. So we will continue bringing artists to you, and thank you. Namaskar. Salam. Namaskar. To all of you. Thank you. Thank you. Till we meet Thanks. in October, 2nd Saturday, 6 p.m. Thank you.